students, periodic classification of elements and its periodicity, lecture 2. In lecture 1 we have studied about the classification of the elements, the earlier attempts made by the scientists, that is Daubenier, Newland and your Mendeleev, who is known as father of periodic table. I hope that is clear to you, as you have not asked any doubts. So let us move forward to the modern periodic table. The modern periodic table, or you can say the modern periodic law, was given by your Henry Moseley in England, proved that more fundamental property of an element on the basis of its atomic number. This was a scientist, Henry Moseley. He tried to change the ड्रॉबैक्स ऑफ योर मेंडलीव्स के जो ड्रॉबैक्स थे, जैसे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स या फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, दे वर फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. सो what does Henry thought that the element should be the periodic function of their atomic number. So on the basis of this, Henry gives you the periodic law given by Henry was that the properties of the elements are the periodic function of their atomic number. This is your modern periodic law. And what was your Mendeleev's periodic law or simple periodic law? The properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. Periodic function in the sense their chemicals and physical properties. Okay, so the law is clear to you. Direct आपको law पूछा जाएगा तो exam में याद रखना है. Next, how did atomic number prove a better basis of classification? That is how this Henry Moseley's law proved to be a better version. For example, you can see over here, by choosing atomic number as the basis of classification, the anomalies in the original Mendeleev periodic table, anomalies in the sense the mistakes, removed as described below. First, inversions in Mendeleev table. Mendeleev ने क्या किया था, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, उसके जिनका ज़्यादा एटॉमिक मास था उनको पहले रख दिया था और जिसका कम था उसको बाद में रख दिया था. दैट इज कोबाल्ट एंड निकल वाला. सो अभी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर दिया तो मासेस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा ना. नंबर हाइट वाइज खड़ा कर दिया, 1 2 2, इसकी हाइट इतनी है तो ये पहले होगा, फिर उसका तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर दिया. So this was the first. The anomaly of having the element of higher atomic mass elements before the element with lower atomic mass was removed, because the elements have higher atomic mass had the lower atomic number in such cases. ठीक है, atomic number में ही चेंज कर दिया. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को जस्टिफाई कर दिया, बिकॉज व्हाट आर आइसोटोप्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. तो अब आइसोटोप्स को क्या होगा, एक ही स्लॉट में रख सकते हो ना. आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, दे शुड बी इन द सेम स्लॉट और डिफरेंट स्लॉट. So you are following now which table? We are following our new table, that is modern periodic table. And according to modern periodic law, what is that state? The properties of the elements are the periodic function of their atomic number. So isotopes have the same atomic number, so they should be placed in the same slot. Cleared hai? Next, position of elements in modern periodic table. So modern periodic table total has 18 vertical column known as group and 7 horizontal rows known as periods. I hope vertical columns पता है आपको and horizontal row पता है. ठीक है. Now, blocks of the elements in the periodic table. The periodic table is divided into 4 blocks based on the electronic configuration. उसको 4 blocks में divide किया गया है. कौन से? That is, your first block is your S block. This block consists of group 1 and 2 in your modern periodic table. S block, ये आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कैसे उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज टिल नाउ इन योर 10th स्टैंडर्ड यू आर स्टडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन on the basis of K, L, M and L shell. In higher standard, that is in 11th standard, you will study the periodic classification. एक चैप्टर है वहाँ पे भी, तो उसमें आप स्टडी करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम S, P, D एंड F ब्लॉक के अकॉर्डिंग लिखते हैं. ठीक है, बस आइडिया के लिए आपको पता होना चाहिए S ब्लॉक क्या है, P ब्लॉक क्या है, D ब्लॉक क्या है. P block, this block consists of 13 to 18 elements, 13 to 18 groups, sorry. This block consists to 13 to 18 groups. There are total 18 groups. As previous slide में आपने देखा, there are total 18 groups, okay. तो उनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया इन 18 ग्रुप्स को. डी ब्लॉक, दिस कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 3 to 12. Elements lying in this block is called transition elements. Now why they are called transition elements वो आपको next slide में बताती हूँ. ठीक है. Now F block elements, this block is placed below the main table
and the elements belonging to this groups are called inner transition elements. Now why they are called transition and why they are called inner transition, that we will see. Pay attention now. This is your periodic table, ठीक है. अब पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है. थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप तक आपका डी ब्लॉक है, जो ब्लू शेड है वो डी ब्लॉक है. और ये बोरॉन से लेके ये नोबल गैस तक आपका क्या है, पी ब्लॉक. तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि एस से लेफ़्ट टू राइट जो चेंजेस देखते हो आप इसके गो थ्रू होके जाता है इस ब्लॉक से, तो वो ट्रांजिशन शो करता है, मतलब चेंज शो करता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये देखो इनर अंदर है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, इस ये नीचे उनको पूरे एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया गया है. So they are known as inner transition elements because they lie inside the D block elements. Okay, so is this clear to you? Next, the first period अभी आपको cleared है ना, ये group है, this is known as group. Vertical columns are known as groups. So there are total how many groups? 18 groups. And horizontal rows, first row, second row, third, this is your fourth, this is your fifth row, this is your sixth row, this is your seventh row. ये दोनों को काउंट मत करना, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उनको पूरा डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे, ठीक है. सो योर फर्स्ट ग्रुप, ये जो फर्स्ट पीरियड है, पीरियड वाइज कितने एलिमेंट्स है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, 2. सेकेंड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स. थर्ड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम. फोर्थ पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Okay, so then the first period contains 2 elements and it is called the shortest period. Periodic table में periods in the periodic table, first period contains 2 elements and is called the shortest period. Second and third period contains 8 elements each, are called short period. Fourth and fifth period contains 18 elements each and are called long periods. And your sixth period contains 32 elements and is called the longest period. Okay, now next, groups. Now groups, as we have seen, there are how many groups? There are total 18 groups and some of the groups have been given some specific names. कुछ groups को उनका specific names दिया गया है. Let us see. For example, group 1. Group 1 are known as alkali metals. What are alkali metals? Revise it fast. आपने second chapter acid, bases and salt में पढ़ा है. What are alkalis? When the oxide dissolved in water and form base are known as alkali metals. As you can see, आपका जो group 1 के elements है, group 1 के elements lithium, ये group 1 है आपका. दिस इज योर ग्रुप 1. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जब पानी में डालते हैं तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अल्कलाई मेटल्स. ओके, सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कलाई मेटल्स. Group 2 elements are known as alkaline earth metals. Now why they are known as alkaline earth metals? Because the majority of that elements are found in your earth crust. कहाँ मिलते हैं, earth crust में. Next, group 17. Group 17 are known as halogens. Now why they are known as halogens? Group 17 के elements कौन से हैं, chlorine, fluorine, bromine, iodine, acetylene. So when you burn them in the laboratory burners, this compounds give a colored flame. क्या देते हैं वो, अलग अलग colored flames देते हैं, इसलिए उनको halogens बोला जाता है, halogens. Okay, group 18, they are known as noble gases or you can say inert gases. Why they are known as noble gases? Because they are, क्या बोल सकते हैं, इनर्ट है, जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनको एक अलग स्लॉट दिया गया, ग्रुप 18 नोबल गैसेस. ये नाम आपको याद रहने चाहिए, एमसीक्यूज फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि ग्रुप 17 इज नोन एज विच टाइप, नेम. ग्रुप 18 आर नोन एज विच टाइप, नोबल गैसेस. ओके, नेक्स्ट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक टू फाइंड पीरियड. आप इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर आपको दिया होगा तो उसके बेसिस पे आप कैसे फाइंड कर सकते हो, पीरियड कैसे फाइंड कर सकते हो, ग्रुप कैसे फाइंड कर सकते हो, वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड कर सकते हो, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कैसे फाइंड कर सकते हो, मेटल और नॉन मेटल कैसे फाइंड कर सकते हो. पे अटेंशन नाउ. With the help of atomic number or electronic configuration, we can find this. First, period. कैसे फाइंड कर सकते हो पीरियड.
To find the period of the element can be detected with the help of number of shell it is filled in. जितने shells उसने fill किए while writing the electronic configuration, that is your period. For example, I am saying you atomic number of an element is 10. What I am saying, the atomic number of an element is 10. So अगर आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया है, सबसे पहला काम आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 2. बचे कितने? 10 माइनस 2 8. तो एल शेल में मैक्सिमम टेंडेंसी कितनी है? 8 की, तो वो एल में चले जाएंगे. कितने शेल्स फिल किए उसने? एक तो के शेल फिल किया और एक कौन सा शेल फिल किया? एल. तो हाउ मेनी शेल्स? 2. सो व्हाट इज द पीरियड? 2. Pay attention now here. And element X atomic number is 12. Write the electronic configuration and find its period. So answer, electronic configuration क्या होगा? 2 8 2, right? K shell में 2 जाते हैं, L में 8. अब भर गया, बचे हमारे पास 2 और है, तो वो किस में जाएंगे? दूसरे शेल में, M shell में. So how many shell it has filled it? It has filled it 3 shells. So what is the period? 3. Cleared है? अगर मैं बोल रही हूँ आपको an element X atomic number and element X atomic number is 15. Find the period. So electronic configuration 2 8, बचा कितना? 8 plus 2 10, then 5. How many shells it has filled it? 1 2 3. So what is the period? 3. समझ में आया? Same way if I am saying you an element's atomic number is 8. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो भी है ना ग्रुप वैलेंसी, वो भी इससे रिलेटेड है. जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आएगा आप नहीं कर पाओगे. 2 6, राइट? के शेल में 2, एल में 6. सो व्हाट इज द पीरियड्स? सोचो व्हाट इज द पीरियड? 2, बिकॉज इट हैज फिल्ड इट 2 शेल. क्लियर्ड? नेक्स्ट, how to find the valence electrons. Now what is valence electrons? पढ़ा है आपने 9th में, रिवाइज करो. नहीं पढ़ा है तो एक बार वापस नोट्स को गो थ्रू करना. What is valence electrons? The number of electrons in the outermost shell is called valence electrons. जितने outermost shell में electrons होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? valence electrons. For example, I am asking you an element's X atomic number is 17. What is the valence electrons? सबसे पहला स्टेप अगेन क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, that is 2, then 8, then 7. ओके. अब मैं अगर पीरियड भी पूछूं तो आप बता सकते हो ना क्या पीरियड है? हमने आगे ही पढ़ा है. व्हाट इज द पीरियड? कितने शेल्स फिल हुए? पीरियड क्या हो जाएगा उसका? 3rd. इज इट क्लियर टू यू? बट हमें क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. सो आउटरमोस्ट शेल मतलब लास्ट शेल. तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7. सो व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 7. समझ में आया? हाउ टू फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड अ ग्रुप नंबर. हाउ टू फाइंड अ ग्रुप नंबर. अभी हमने पीरियड कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया. अब हम देखते हैं कि ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं. सो इट हैज़ 2 केसेस. ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए 2 केसेस है. सबसे पहला केस देखो. इन केस 1, if number of electrons in the outermost shell is 1 or 2, then group number is equal to valence electrons. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रही हूँ मैं आपको, अगर आउटरमोस्ट शेल में 1 या 2 से कम नंबर है तो वही उसका ग्रुप नंबर होता है. जैसे मैंने बोला एक्स एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 12. अगेन आपको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8, 2, राइट? सो आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 2. तो लेस 1 और 2 ना, 1 और 2 है तो ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर इज द सेम, दैट इज 2. समझ में आया? फर्स्ट केस. अगर मैंने बोला एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर x इज 11, फाइंड द ग्रुप नंबर, पीरियड, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तीनों अभी ट्राई करके देखते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट 2, 8, 1, ठीक है. 1 वेट, मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ. 1. सो पीरियड क्या हो गया? बोलो पीरियड क्या हो गया? सोचो. 1 2 3, 3 शेल्स, तो पीरियड इज 3. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट में कितना है? 1. तो 1.
अब ग्रुप नंबर क्या है, आउटर मोस्ट देखना पड़ेगा, तो आउटर मोस्ट में 1 या 2, तो ग्रुप नंबर भी सेम, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है, आउटर मोस्ट में 1 है तो ग्रुप नंबर भी क्या है, 1. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ लेट अस सी द सेकेंड केस. व्हाट इज द सेकेंड केस? Second case, if the number of valence electrons in the outermost shell is more than 2. Obviously first case तो क्या था, 1 और 2 के लिए था, तो second case more than 2 भी होगा ना. आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, मैम अगर 2 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे. थोड़ा धीरज रखो, आगे बता ही रही हूँ आपको. So if the number of valence electrons in the outermost shell is more than 2, then group number will be 10 plus number of valence electrons. अगर more than 3 है, जैसे example x atomic number is 13 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होगा, 2, 8, 3. अगेन पीरियड बताओ, कितने शेल्स फिल हुए, 1, 2, 3, पीरियड 3. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आउटर मोस्ट में, 3. ओके, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, मोर देन 2 है ना, तो ग्रुप नंबर विल बी, व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड द ग्रुप नंबर, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 3, तो ग्रुप नंबर इज व्हाट, 13. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, समझ में आया. सो इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन आउटर मोस्ट शेल इज मोर देन 2, देन ग्रुप नंबर इज 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है. फाइंड फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर इन 10 एंड 12. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 10 का क्या होगा, 2, 8. आउटर मोस्ट में क्या है, मोर देन 2 है ना, आउटर मोस्ट में, ये आउटर मोस्ट, लास्ट शेल आपका आउटर मोस्ट होता है, मोर देन 2 है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, तो ग्रुप नंबर 18. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 12, 2, 8, 2, तो ग्रुप नंबर आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया, 2. नाउ नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द वैलेंसी. सो देयर आर 2 cases to find the valency. Case 1, if an element has less than 4 electron in the outermost shell, then the valency is equal to number of valence electrons. अगर outermost shell में 4 इलेक्ट्रॉन्स है या 4 से कम, तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे. जैसे एग्जाम्पल, एन एलिमेंट्स एक्स एटॉमिक नंबर इज 12. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 2. पीरियड कितना, 3. ग्रुप नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2. अभी आउटर मोस्ट शेल में कितना है, लेस देन 4 है ना, तो 2, तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी उसकी, 2. व्हाट इज वैलेंसी, द टेंडेंसी टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू गेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो ऑब्वियसली ये 2 ईजिली लूज करेगा ना, कोई उसको 6 थोड़ी देगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, वो ईजिली 2 लूज कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल. सो समझ में आया, फर्स्ट केस इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट केस. Case 2, if an element has more than 4 electrons in the outermost shell, then valency is equal to 8 minus valence electrons. That time valency is 8 minus valence electrons. Example के थ्रू वापस बताती हूँ आपको. If x atomic number is 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 5. पीरियड क्या होगा, 3. ग्रुप नंबर 10 प्लस 5, 15. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5. अभी वैलेंसी भी मोर देन 5 है ना आउटर मोस्ट में, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी, 8 माइनस 5. सो व्हाट इज अ वैलेंसी, 3. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. आगे आपको मैंने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी पूछा था और मेटल्स और नॉन मेटल्स भी पूछा था, तो कैसे बता सकते हो. तो मेटल्स आर वन विच ईजिली लूज द इलेक्ट्रॉन्स, तो जो ईजिली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स उसको हम मेटल्स बोलेंगे. जैसे अगर जिनकी वैलेंसी 1, 2, 3 आए, तो वो क्या हो गए, मेटल्स, बिकॉज वो लूज करेंगे. एंड जिनकी वैलेंसी 5, 6, 7 आई, तो वो क्या करेंगे, वो गेन करेंगे, तो वो क्या हो गए, नॉन मेटल्स. अगर आपको एक बार पता चल गया वो मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है, तो आप नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी बता सकते हो. नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन द सेंस, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो कौन से टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, आपका मेटेलिक एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स. सो यू नो कि मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो उसके बेसिस पे आप उसका नेचर भी बता सकते हो. जैसे मैंने बोला, एन एलिमेंट्स एक्स एटॉमिक नंबर इज 15, सेम मैं बोल रही हूँ, तो 2, 8, 5. अब आउटर मोस्ट में 5 है, तो ऑब्वियसली वो गेन करेगा, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ नॉन मेटल. नॉन मेटल है,
अगर ये ऑक्सीजन के साथ, ये जो भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो कौन से टाइप का ऑक्साइड बनाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर वेट बोलो जल्दी, नॉन मेटल ऑक्साइड्स सोचो, सॉरी सोचो क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे कि बेसिक होंगे? कैन यू से? वो रिवाइज कर नेचर ऑफ द ऑक्साइड. सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर योर, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अच्छा ये पीरियोडिसिटी बाकी है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी. सो नॉन, जैसे आप देखते हो कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स है तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी in the group or personally also, no problem. but go through करो and exams के लिए जो भी exams आएंगे उनके लिए prepare करो. Thank you.